Hello you all. In the last video we have discussed the trigonometric identities and in this video we are going to start the question based on trigonometric identities and आप लोग को ये बता दूं मैं स्टूडेंट्स कि ये आपके NCERT का 8.4 है. ओके अगर आप अपने NCERT के थ्रू जाएंगे तो guys, so let's start today's topic, questions based on trigonometric identities. I have taken 4 or 5 questions so that the concept behind trigonometric identities would be clear to you. Okay, so let's start today's question. The first question is very simple. Sin square 63 degree plus sin square 27 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree is equals to. The question is telling about कि आप इसको simplify करो. So you can see very well 63 and 27, add these two angles. You can very well see that these are the complementary angles, है ना. दोनों का सम आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 90 आ रहा है. So जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस आता है, आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि जो भी पेयर है उसमें से आप किसी एक की वैल्यू को चेंज कर दीजिए. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेंजिंग दिस and similarly in these two I am changing this. 63 degree can be rewritten as 90 degree minus of 27 degree and similarly 17 degree can be rewritten as 90 minus of 73 degree. Is there any doubt? अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर 8.3 वाला जरूर देखिए, पार्ट 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, तो 63 डिग्री को हमने ऐसा लिखा. नाउ वी कैन सी that sin square 63 degree can be written as sin square 90 minus of 27 degree and this is sin square 27 degree. Now cos square 17 degree can be rewritten as cos square and 17 can be rewritten as 90 degree minus of 73 degree and it is also cos square 73 degree. Now tell me student, what is the value of sin 90 minus of theta? याद करिए, बिल्कुल बिल्कुल पिछली क्लास में जाइए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा? वेल सेड, cos थीटा. एंड सिमिलरली cos 90 minus theta is what? Cos 90 minus theta is sin theta. And the big question is कि मैम ये साइन स्क्वायर है और यहाँ पे साइन है तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, दिस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट दिस इज का होल स्क्वायर. ओके, तो अगर आप ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप इसको बाहर स्क्वायर लिखेंगे तो अंदर वाली वैल्यू कैसे दिखेगी? साइन 90 माइनस ऑफ थीटा विच विल बी cos थीटा. सो आई कैन राइट दिस वैल्यू एज cos square 27 degree. In the place of theta you have 27 degree and इसको आप as it is रखिए sin square 27 degree. Now in the denominator cos 90 minus of theta, what its value will be? Sin theta. So it will be sin square 73 degree just because of we have one square over here and it is cos square 73 degree. अब तो ये मुझे बहुत ही आसान दिखने लग गया. बताओ बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है? इट इज आइडेंटिटी नंबर 1 विच इज sin square theta plus cos square theta is equals to 1 and sin square theta plus cos square theta is equals to 1. तो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये भी हो गया 1 बाय द आइडेंटिटी and it is also 1 by the identity. So 1 by 1 answer is what? 1. This is my answer. है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन ही ले रही हूँ सो दैट आप लोग आइडेंटिटी से थोड़ा यूज टू हो जाए. उसके बाद अपन कुछ अच्छे बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर a माइनस ऑफ 9 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, मेरे को पूछा हुआ है. ठीक है, आई कैन वेरी वेल सी दैट 9 इज इन बोथ द टर्म्स सो आई कैन टेक इट एज कॉमन. तो 9 आप कॉमन ले लीजिए. इट इज x स्क्वायर a माइनस ऑफ 10 स्क्वायर a. अब तो यहाँ पे ऐसा कोई एंगल दिख ही नहीं रहा है मेरे को. अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसा करती हूँ कि सोचती हूँ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 10 एंड sec. तो थोड़ा सा याद करो, पिछली क्लास में जाओ, आइडेंटिटी वाली क्लास में. 1 plus 10 square a is what? It is nothing but sec square a. It means in the place of sec square a I can write 1 plus 10 square a. तो आप उसको लिख दीजिए बिल्कुल. यहाँ पे अपन ने लिखा 9 and in the place of sec square a I can write 1 plus 10 square a और ये वाला तो minus 10 square a यहीं पे ही रहेगा. Now guys tell me क्या दिख रहा है? बहुत ही आसान हो गया ना. It is plus 10 square a minus 10 square a. कैंसिल कैंसिल. 9 इंटू सिर्फ क्या बचा हुआ है 1. सो द आंसर विल बी 9. तो ये हो गया मेरा आंसर. कैसा था बताओ? बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है. लेट्स हैव द थर्ड क्वेश्चन. इसको पहले अपन रब कर देते हैं. धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझेंगे पहले, उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चंस भी. आई होप ये आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि हम कैसे आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, आई नीड टू प्रूव 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। ओके, ये तो आसान ही लग रहा है मेरे को, बहुत ही आसान लग रहा है। क्या किया जाए? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। क्या करना है आपको? प्रूफ करना है। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, यू कैन टेक राइट हैंड साइड एंड यू कैन प्रूव लेफ्ट हैंड साइड, और यू कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड यू कैन प्रूव राइट हैंड साइड। आपको जो आसान लगता हो आप वो कर लेना। तो मेरे को दिख रहा है ना कि राइट हैंड साइड वाले में जब भी स्टेप के कुछ पैटर्न रहता है तो इसको रैशनलाइज करते हैं, है ना। जब भी कुछ स्टेप का पैटर्न रहता है ना तो अपन इसको क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। आप स्टार मार्क करके वहां पर लिख भी लीजिए कि जब भी हमारे पास में ऐसा कुछ पैटर्न रहता है तो हम उसको क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँ। अगर इन केस कहीं भी हम रुक गए, हमको नहीं मिला लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी अप्रोच करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछती हूँ। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सोचो सोचो सोचो, साइन का। ठीक है, गुड। एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट? नथिंग, 10। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ? I'm taking right hand side and I'm going to prove left hand side. So my right hand side value is 1 minus of cos theta upon 1 plus of cos theta. ठीक है, रैशनलाइज कहने का मतलब ये होता है वॉट एवर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, अगर मैं इस ऑपरेशन में रैशनलाइजेशन अप्लाई करती हूँ तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी डिनोमिनेटर से, बट डिनोमिनेटर के ये जो सेंटर का साइन है इसको हम चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू एंड p प्लस क्यू। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन रैशनलाइजेशन अप्लाई करने वाले हैं। इन द डिनोमिनेटर यू कैन सी दैट 1 plus cos theta is there. Okay, what I have told you, I will change this sign and I will multiply the term in the numerator and the denominator. So I'll be using rationalization and I'm multiplying 1 minus cos theta in the numerator and the denominator. Now guys, tell me what will happen. This whole term will get multiplied with this and this term will get multiplied with this. Now you can see this is 1 minus cos theta and this is also 1 minus cos theta. So what it will be? It will be 1 minus of cos theta का whole square. Understood everybody? Now it is what, देखो देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होने वाला है। इट इज नथिंग बट a प्लस बी एंड इट इज a माइनस ऑफ b, और दोनों के बीच में क्या? मल्टीप्लीकेशन है। कौन सा फॉर्मूला? यस, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? cos थीटा। तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब गाइस थोड़ा सा ना देखते हैं यहाँ पे, ये ना मुझे किसी कोई आइडेंटिटी जैसा दिखाई देने लग गया। मैं आप लोग को भी दिखा दे रही हूँ। आपको पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1। ठीक है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में। नाउ टेल मी वन थिंग, इफ आई remain sin square theta here, if I'll keep remain sin square theta here and I will send cos square theta in the right hand side, it means 1 minus of cos square theta. तो 1 minus of cos square theta is what? sin square theta. So क्या क्या ये कैसे आगे समझ में है ना, बस मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, nothing else. ठीक है, so in the place of 1 minus of cos square theta what I can write? sin square theta. So it is 1 minus of cos theta whole square and it is sin square theta. Get it? Now guys 1 minus cos theta में भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है? स्क्वायर है। क्या किया जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 1 minus of cos theta upon sin theta का होल स्क्वायर। एनी डाउट अप टू हियर? आई गेस नो। अगर लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए वीडियो देखते देखते, जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। 1 minus cos theta का पूरा स्क्वायर है, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा भी है डिनोमिनेटर में, तो दोनों में स्क्वायर है ना, तो मैं दोनों को ऐसे लिख के पूरे में स्क्वायर आई कैन यूज। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि दिस sin थीटा इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ 1 and is in the denominator of cos also, so I can write it as 1 upon sin theta minus of cos theta upon sin theta whole square. आई गेस यहाँ तक भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो मुझे लग रहा है कि जो मुझे प्रूफ करना था वो मेरे को मिल गया है। क्यों? देखो 1 upon sin theta is what? कोसेक थीटा पढ़ा हुआ है सबसे पहले वाले लेक्चर में। रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक, तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस बाई साइन? तो आपको पता है कि tan इज नथिंग बट साइन बाई कॉस। आपको पता है कि tan इज नथिंग बट साइन बाई कॉस, और कॉट जो है वो उसका रेसिप्रोकल है, मतलब कॉस बाई साइन। तो गाइस ये तो बहुत ही सिंपल था यार। कॉस बाई साइन कितना हो गया?
कॉट थीटा हो गया, और ये दोनों के में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। देखो देखो देखो, बिल्कुल ये लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिखता है क्या? हाँ मैडम, ये तो लेफ्ट हैंड साइड ही है। मतलब क्या हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। तो आप क्या करेंगे, आप मेरे को मेल करिए कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को प्रूफ करो, ठीक है? तो ये हम आप लोग के लिए होमवर्क रख देते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को करो। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID गिवन है, आप उसमें जरूर मेरे को मेल कीजिए अपना सोल्यूशन लिख करके। ओके, नाउ आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया हो। अब इससे एक और लेवल ऊपर अपन चलते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में और रेफरेंस बुक्स में दिए हुए हैं। मैं सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, बट जो कुछ मुझे अच्छे लगे क्वेश्चंस वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ओके गाइस, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। 5 और 6 ये अपकमिंग क्वेश्चंस है। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रूव दैट वाले हैं, मतलब हम एक साइड को लेंगे और दूसरे साइड को प्रूव करेंगे। जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया था, ठीक है? सो आई हैव रिटन वन क्वेश्चन ओवर हियर। सी प्रूव करना है मेरे को, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू, आई नीड टू प्रूव 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो मैंने देखा कि यार क्वेश्चन तो सब बड़ा है, तो मैंने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना? तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू प्रूव राइट हैंड साइड। ओके, लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सो यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो पहले ये लगता है कि मैम क्या करना है। तो मैंने देखा यार कि जो भी मेरे को प्रूफ करना है, सेक और कोसेक के फॉर्म में प्रूफ करना है, सेक और कोसेक के फॉर्म में प्रूफ करना है, तो क्यों ना मैं tan और cot को sin cos में चेंज करके देखूं, ठीक है? नहीं होगा तो नहीं होगा, दूसरा तरीका यूज करेंगे, ठीक है? सो आई एम ट्राइंग टू पुट इन द प्लेस ऑफ tan sin by cos एंड इन द प्लेस ऑफ cot cos by sin, as I have told you in the last question. Okay, so I'm taking left hand side and in the place of tan I'm writing sin theta upon cos theta and in the place of cot I'm writing cos theta upon sin theta. ठीक है गाइस, सबका सॉल्व करने का तरीका अलग हो सकता है। आप इसको और किसी मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया cot की वैल्यू cos बाई साइन माइनस ऑफ tan की वैल्यू अगेन sin बाई cos. Now you can see in the denominator there is 1 minus of some value, so what I need to take, I need to take LCM over here. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, एक ये बड़ा मतलब डिनोमिनेटर, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है। So in the numerator there is sin by cos and in the denominator you can see the sin is in the LCM of denominator and it is 1, that's why 1 is multiplied with the sin theta and यहाँ पे कितना हो जाएगा cos theta plus it is cos theta by sin theta and in the denominator there is cos theta and ये cos जो है वो यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा cos theta minus of sin theta. तो अगर आप चाहो तो मैं एक छोटा सा ब्रैकेट या स्टेप्स के बीच में लाइन मार्क कर दे रही हूँ, सो दैट बार बार साइन कॉस लिखा रहा है आपको डाउट मत हो, ठीक है? अब क्या होगा देखो, अब हम क्या करेंगे, ये भी a बाई डी है, ये c बाई डी है, तो जब मैं इसको ऊपर करती हूँ तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में। तो वैसे कैसा दिखेगा देखो, sin theta by cos theta and when this denominator goes up, this sign will come in the upper side and this is sin theta minus of cos theta. What about this value? This is also will be same cos theta sin theta into यहाँ पे हो जाएगा cos theta और ये डिनोमिनेटर में कितना हो गया यार, cos theta minus of sin theta, ठीक है? अब अपन क्या कर रहे हैं, वापस से एक लाइन यहाँ पे खींच दे रहे हैं so that you can identify the steps clearly. इसका इंक थोड़ा सा चला गया लग रहा है। sin into sin कितना हो जाएगा, sin square theta. What about this? हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ वैल्यू मेरे को सेम दिख रही है ना? हर कुछ को फटाफट आपको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। ये हो गया आपका sin square theta अपॉन cos theta into sin theta minus cos theta plus cos into cos square theta upon sin theta into cos theta minus of sin theta. Guys, I can do one thing, no? आप देखिए यहाँ पे this is sin minus of cos and this is cos minus of sin. Okay, the terms are same. What? The terms are same, but आगे पीछे हैं। तो अगर मैं साइन को पहले लिखना चाहूँ और कॉस को बाद में लिखना चाहूँ, मतलब अगर मैं a माइनस बी को b माइनस ए लिखना चाहूँ तो सीधी सी बात है, मुझे एक माइनस साइन को बाहर लेना पड़ेगा। आसान ही है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस भी हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगेन आई विल गेट द सेम वैल्यू। ओके, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने इसको आगे पीछे कर दिया तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, उस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, ये माइनस लिख दिया एंड आई एम राइटिंग इट एज sin theta minus of cos theta.
बोलिए भाई, किसी को डाउट है क्या? आप एक ही स्टेप में मत करिएगा, यू कैन यूज अनदर स्टेप टू राइट दिस वैल्यू, ठीक है? मेरे छोटे छोटे बच्चों, आप लोग को अगर कुछ डाउट लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट करिए, है ना? आप देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर में व्हाट इज कॉमन? द कॉमन वैल्यू इज साइन माइनस ऑफ कॉस, साइन माइनस ऑफ cos, but these two values are not common, so what will be my LCM? My LCM would be sin theta cos theta into sin theta minus of cos theta. What will be in the numerator? देखिए इस वाले टर्म के पास में साइन नहीं है तो साइन वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा भाई? साइन क्यूब थीटा minus of here it is not having cos in the denominator, that's why cos will get multiplied with it and it will be cos cube theta. कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है बिल्कुल a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब जैसा। ये स्टेप को मैं यहाँ पे फिर से एक लाइन से कवर कर दे रही हूँ। आप देखिए a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब कैसा दिख रहा है ये आपको? a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू? a माइनस ऑफ b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं लर्न है, तो लर्न करो, राइट योर ऑल फॉर्मूला, अलजेब्रास फॉर्मूला इन वन पेज ऑफ योर कॉपी, सो दैट आपको कभी भी जरूरत पड़े आप टर्न कर लो और फट से देख लो, ठीक है? अभी देखो आपने ये ला लिया। अब इसी की तरीके से यू कैन सी इन द प्लेस ऑफ ए देयर इज साइन थीटा, इन द प्लेस ऑफ बी देयर इज अ कॉस थीटा, सो आई एम राइटिंग दिस स्टेप एज sin theta minus of cos theta by using this formula, and it is sin square theta plus of sin theta cos theta and plus of cos square theta, and in the denominator there is sin theta cos theta और हो जाएगा sin theta minus of cos theta। आपको लग रहा होगा मैम कितना लंबा है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल लंबा नहीं है यार। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 छठवें स्टेप में है, 7th स्टेप में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा तो ऊपर आना है ना, 10th क्लास में पहुंच गए हैं बच्चे थोड़ी ना, ठीक है? अब देखो now this sin theta minus cos theta and sin theta minus cos theta will be get cancelled out. One more thing I can see that sin square theta plus of cos square theta is what? It is 1 by which identity? Identity number 1। तो ये तो खत्म हो गया था, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? 1। प्लस में क्या बचा? sin theta cos theta, इन द डिनोमिनेटर sin theta cos theta। तो गाइज मैं बार बार इस चीज को आपको बोल रही हूँ कि ये 1 के भी अपॉन में है और ये sin theta बाई cos theta के भी अपॉन में है ना? दिख रहा है ना सबको? ठीक है ठीक है ठीक है। तो सारी चीजें लिंक्ड रहती है, एक एक स्टेप लिंक्ड रहते हैं आपके, मैं जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, ठीक है? आप देखो इस 1 के अपॉन में ये है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin theta cos theta प्लस ऑफ sin theta cos theta अपॉन भी कितना हो गया? sin theta cos theta। ये कैंसिल हो कितना आ गया? 1, और 1 बाई साइन कितना होता है? कोसेक थीटा, एंड 1 बाई कॉस कितना होता है? सेक थीटा, और ये तो कितना हो चला है? 1। अब देखो इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, और मैंने देख लिया कि ये बिल्कुल वैसा आ गया है जैसा मेरे को प्रूव करना था, ठीक है? तो है ना ये बहुत ही आसान, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा ना पेशेंस रख के कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है ये सब आपको थोड़ा सा समझते चलना है। तो ये किससे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद में प्रैक्टिस लगाइएगा, और कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को मेल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगी? हैंस प्रूव्ड। आई होप आप लोग को ये सोल्यूशन समझ में आया। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट था वो 10 की जगह पे क्या रखना था? साइन बाई कॉस, और कॉस की जगह कॉट की जगह में कॉस बाई साइन। वन मोर थिंग, इट इज द सेकेंड हाईलाइट को मैं हमेशा स्टार मार्क करती हूँ, आप भी स्टार मार्क करिए, ठीक है? क्योंकि जब भी हम पढ़ते रहते हैं तो स्टार हमको अलग से दिखेगा, हमको समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ हमने ऐसा यूज किया है जो हमको जनरली नहीं याद रहता, ठीक है? आई हैव बीन यूज्ड हियर a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब, द फॉर्मूला इज like a minus of b into a square plus ab plus b square, ठीक है? ये हो गया हमारा प्रूफ। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट चलते हैं। आई होप आप लोगों ने ये वाला पूरा जो क्वेश्चन है वो समझ लिया होगा गाइज। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को देख करके, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स में ले जा करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अंडर रूट के अंदर में अपॉन 1 माइनस साइन ए, एंड व्हाट आई नीड टू प्रूव? आई नीड टू प्रूव इट एज सेक ए प्लस ऑफ 10a। ओके, आई एम टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड आई एम गोना प्रूव सेक ए प्लस 10a, ठीक है? मैंने बोला था इस टाइप का दिखेगा तो क्या करना है? रैशनलाइज करना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 1 प्लस साइन ए एंड इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस ऑफ साइन ए, and now I'm rationalizing this term as I have done previously। यहाँ पे लिख दो आप rationalizing, जो भी आपको लिखना है आपके याद रखने के लिए, ठीक है?
नाउ यू कैन वेरी वेल सी दैट 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 2 बार यूज हुआ है, सो इट विल बी मल्टीप्लीकेशन में भी है, क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. Now it is 1 a minus of b, a plus of b. I have told it previously, it is a square minus of b square. So it is a square minus of b square. Okay, 1 का square is 1. Guys, I have told you that sin square a plus cos square a कितना होता है, 1 होता है. अब यहाँ पे देखो यार, मेरे को चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस को यहीं रहने देते हैं, साइन को वहां भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इज 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए. Now I can very well see that in the place of 1 minus of sin square a I can easily write cos square a. Okay, तो ये तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग के समझ के बाहर नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, है ना. दिख गया क्या? अब देखो यार, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, मैं पूरे का स्क्वायर लिख देती हूँ, होल स्क्वायर. क्या लिख दे रहे हैं अपन? होल स्क्वायर. इट इज 1 प्लस साइन ए एंड अपॉन कॉस ए, एंड ये पूरे का हो गया होल स्क्वायर. अब मुझे बताओ अंडर रूट और होल स्क्वायर का क्या होता है? दोनों कैंसिल हो जाते हैं. वाई सो? आपका अंडर रूट जो है वो इट इज पावर 1/2 और ये कौन सा पावर है? 2. दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 कैंसिल. तो ये आपका अंडर रूट और ये 2 क्या हो जाता है गाइस? कैंसिल हो जाता है. आपको ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाना है. ओके, मैं बस आप लोग को बता रही हूँ. ठीक है, इट इज अंडर रूट एंड इट इज स्क्वायर. तो अंडर रूट स्क्वायर क्या हो जाता है? कैंसिल. तो आपके पास में बचा क्या? 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a. Now you can very well see this cos is in the denominator of 1 and it is also in the denominator of sin also. So I can write it as 1 by cos a and sin a by cos a. तो ये कितना हो गया? sec a प्लस ऑफ कितना आ गया? tan a. hence proved हो गया. देख लो देख लो देख लो देख लो, हुआ कि नहीं? hence proved बिल्कुल हो गया है. अब क्या करते हैं, इसको अपन रब कर देते हैं. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से देखना, आसान है. आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी. 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है इन द डिनोमिनेटर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, एंड वन मोर थिंग इज गिवन. ये अपने टाइप का एक अलग सा इक्वेशन है, नया. ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं. इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं है, इसमें 3 हैंड है. कितने हैंड है? 3 हैंड नहीं है, है ना. एक बार आप इसको इसके साथ में करके देखिए, मतलब इसको सॉल्व करके आपको ये प्रूफ करना है, एंड द सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करके आपको इसको प्रूफ करना है. ठीक है, इसका मतलब समझिए ऐसा, इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू c, तो सीधी सी बात है a इज ऑल्सो इक्वल टू b. वैसे ही कुछ है ना. आपको बस इन दोनों को सॉल्व करना है, कितना लेकर के आना है? टेन स्क्वायर a लेकर के आना है. तो गाइस लेट्स डू द सोल्यूशन. सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ. आप देखिए बहुत आसान है. मैं लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा पार्ट ले रही हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. फॉर्मूला याद करो, आइडेंटिटी याद करो. 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है? सेक स्क्वायर ए. कितना होता है? सेक स्क्वायर ए. आपको आइडेंटिटीज याद रखना बहुत ज़रूरी है बेटा. सबको आपको आइडेंटिटी याद रखना बहुत ज़रूरी है. उसके बिना नहीं काम चलेगा हमारा. ओके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए. ठीक है, तो आप मुझे बताइए सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ विच रेशियो? इट इज 1 बाई कॉस स्क्वायर ए. एंड कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ विच रेशियो? साइन. सो इट विल बी 1 बाई साइन स्क्वायर ए. जब तक आप लोग को आइडेंटिटीज याद नहीं है, आप आइडेंटिटीज देख के यूज कीजिए, पर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो चलेगी ना, आपको पूरा आइडेंटिटी याद हो जाएगा. ठीक है, नाउ दिस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए विल बी एज इट इज, बट व्हेन दिस डिनोमिनेटर विल कम अप, तो ये साइन ऊपर आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है, एंड इट इज 1. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 1 इंटू साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए. बताओ 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 कितना आ गया? कितना आ गया? टेन स्क्वायर ए आ गया. हाँ, कितना आ गया? टेन स्क्वायर ए. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आई एम टेकिंग 1 माइनस ऑफ टेन ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉट ए एंड इट इज होल स्क्वायर. आई नीड टू प्रूव इट एज टेन स्क्वायर ए. तो जब भी हम लोग ये कर रहे थे तो आप लोग ने बोला मैम वो तो बहुत आसान था. 1 प्लस टेन स्क्वायर ए था तो वो भी आइडेंटिटी हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था वो भी आइडेंटिटी हो गया. बट यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे कैसे सोचेंगे कि कैसे रिजॉल्व करना है? तो देखो 2 चीज़ें हो सकती थी. या तो मैं इस स्क्वायर को ओपन कर देती ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर से, और दूसरी चीज़ है कि मैं 10 को साइन बाई कॉस कर दूँ और कॉट को साइन बाई कॉस बाई साइन कर दूँ. तो मेरे को लगा कि अगर मैं साइन बाई कॉस करती हूँ या कॉस बाई साइन करती हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. हालांकि आप दोनों मेथड को यूज़ करके देख सकते हो. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग 10 एज साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉट एज
cos a अपॉन sin a, और ये क्या था यार, पूरे का स्क्वायर था, ठीक है, ये क्या था यहाँ पे, पूरे का स्क्वायर था। गाइस अब यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं। सी इफ आई टेक एलसीएम इन द डिनोमिनेटर, द एलसीएम विल बी cos a and it is cos a minus of sin a whole upon, in the denominator there is a LCM sin a and it is sin a minus of cos a and it is whole square. Okay, now you can see this is a by b, this is c by d. When this whole denominator will come up, what will happen in the next step? It will be like cos a minus of sin a upon of cos a, and this whole term will come up, so sin will become in the numerator and this term will come in the denominator, so it is sin a upon sin a minus of cos a, and whole square was there, so I written also whole square. Now guys tell me one thing, कि यहाँ पे cos a minus of sin a है, यहाँ पे sin a minus of cos a है, आपको दिख रहा होगा दोनों टर्म सेम है, बस आगे पीछे है। कैसा है? आगे पीछे है। तो अपन एक चीज कर सकते हैं क्या, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी किया था, क्यों ना मैं cos को पहले लिख दूं, sin को बाद में लिख दूं और एक माइनस साइन को बाहर निकाल दूं। सो दिस स्टेप कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ cos a माइनस ऑफ sin a। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, मैंने वहीं पे कर दिया है। सो आई गेस ये आप लोगों को कोई बहुत प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं लगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया इसको। सो दिस cos a minus of sin a and this cos a minus of sin a, this term and this term will get cancelled, vanza. Okay, now what is left with this term? This is sin a in the numerator and minus of cos a in the denominator and square. Okay, so tell me what is the value of sin a by cos a, guys? It is very easy, it is 10a, right? So it is minus of 10a whole square. This minus will be plus and it is 10 square a. You can see we find 10 square a. So after finding 10 square a, my question is proved. ठीक है, हमने देख लिया, यहाँ से अपन ने 10 स्क्वायर ए कर लिया, यहाँ से भी हमने 10 स्क्वायर ए कर लिया, एंड हमारा काम क्या हो गया, खत्म। ठीक है, हमने प्रूफ कर लिया है। सो इस 8.4 वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ 4-6 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है विच इज यू नो बिलोंग्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आप अपने रेफरेंस बुक से और टेक्स्ट बुक से आप और क्वेश्चंस लगाइए, एंड आपको जहाँ पे भी डिफिकल्टी फेस हो रही है आप मेरे को बताइए, कमेंट कीजिए या आप मेरे को मेल कर दीजिए। ठीक है, मैं आपके मेल का जवाब जरूर दूंगी। और गाइस हम लोग इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं मेरे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 5 में, जहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस करने वाली हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो वो वीडियो मेरा बहुत ही बोलना चाहिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज सीबीएसई का मैंने बताया था आपको कि अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो कैसे अपन उसको पल भर में सॉल्व कर लेंगे और कैसे वो आपका टाइम बचाएगा आपके मेन एग्जाम में, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो अभी के लिए डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, डू कमेंट and do subscribe my channel अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो। Thank you guys. Do like, share my video and please subscribe to my channel.